शवासन शुरू करने से पहले मैंने आपको कल बताया था कि हमारा हार्ट चक्र जो है वो मजबूत होना चाहिए। परिस्थितियां आती ही रहेगी और जाती भी रहेगी, लेकिन हर परिस्थिति में हम अपने आप को संभाल सके, इसलिए हार्ट चक्र का बैलेंस होना जरूरी है। वह मैक्सिमम मात्रा में ब्लड सर्कुलेशन, एनर्जी सर्कुलेशन होना चाहिए। तो लेट जाए, दोनों पैर साथ में रखें, दोनों पैर साथ में रखें और हाथ शरीर के बराबर बाजू में रखें, दूर नहीं, और पाम्स जमीन पर रहेंगे। हाथ एकदम शरीर से करीब रखें, दूर नहीं, और पाम्स जमीन पर रहेंगे। और राइट लेग अप करें 30 डिग्री, सिर्फ 30 डिग्री। आप अपनी आंखों से अपने पैर का अंगूठा देख सके इतना ही, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, ओनली 30 डिग्री। और इस तरह से थोड़ी देर तक रहें। सीधा नीचे से ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की ओर हार्ट की ओर जाता है। रिलैक्स, पैर नीचे लाइए। अब दूसरा पैर लेफ्ट लेग ऊपर करें। इसे कहते एक पाद उत्तान आसन। आपका एक पैर ऊपर है। धीरे से नीचे आइए। अब दोनों पैरों को एक साथ में ऊपर करें 30 डिग्री। नी में से बेंड नहीं करना है, सीधा रखना है। देखो कैसा ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की ओर आता है। उत्तान पाद आसन। એક પછી એક બધા નીચે આવી ગયા। નેહા અને કલ્પેશભાઈ બે ટકેલા છે, નૈના ભાભી ટક્યા છે, પણ પકડવાના નથી ઘૂંટણમાંથી પગને। કિંજલ ટકી છે। સરસ, આવી જાવ નીચે। બહુ જ સરસ કહેવાય। હા, 80 સેકન્ડની કેપેસિટી આપવી જોઈએ। ચાલો હવે અર્ધ પવન મુક્તાસન। પેટમાં ગેસ નહીં થવો જોઈએ, બરાબર છે? તો તમારો જમણો પગ ઘૂંટણમાંથી વાળો, એને છાતી પાસે લઈ આવો, બંને હાથને ક્લચ કરી પગને પેટમાં દબાવો। બીજો પગ સીધો રહેશે, હા, અને માથું ઊંચું કરો અને કપાળને ઘૂંટણ સાથે લગાવો। અર્ધ પવન મુક્તાસન। જે ગેસ થયો હોય એ મુક્ત થઈ જાય એટલે એને પવન મુક્તાસન કહે છે। રિલેક્સ, એ પગને સીધો કરી દો। હવે ડાબો પગ છે તેને ઘૂંટણમાંથી વાળો, છાતી પાસે લઈ આવો, હાથથી ક્લચ કરી એને પેટમાં દબાવો એ પગને, માથું ઊંચું કરો અને તમારું કપાળ છે તેને ઘૂંટણ સાથે લગાવો। રિલેક્સ, આને કહેવાય અર્ધ પવન મુક્તાસન। હવે પવન મુક્તાસન, બરાબર? બંને પગને વાળો ઘૂંટણમાંથી, બંને પગને છાતી પાસે લઈ આવો વાળીને। હવે હાથથી કવર કરો બંને પગને અને હવે માથું ઊંચું કરો અને ઘૂંટણને તમારું કપાળ લગાવવાનો પ્રયત્ન કરો। પવન મુક્તાસન કેવું સરસ આસન છે। રિલેક્સ, અને ખાસ કરીને આપણને બધાને લોઅર બેકમાં બહુ તકલીફ થઈ જાય। કંઈક વળીને કામ કર્યું કે અમુક રીતે બેસવામાં આવી ગયું કે વધારે ઊભા રહેવામાં આવી ગયું, તરત જ લોઅર બેક દુખવા માંડે।
તો એના માટે બહુ જ નિર્ભયતાથી થઈ શકે, પણ બહુ જ ઇફેક્ટિવ આસન છે. એને કહે છે કટી ઉત્થાન આસન. બંને પગને ઘૂંટણમાંથી વાળો, બંને પગના ઘૂંટણ વચ્ચે શોલ્ડર જેટલું અંતર રાખો. તમારા બંને હાથ શરીરની બરાબર બાજુમાં જ રાખો, દૂર નહીં, હથેળી જમીન પર રહે તે રીતે. હવે તમારા હાથથી તમારા એન્કલને પકડવા હોય તો પકડાશે. હાથને બાજુમાં જ રાખો અને હવે કમર ઊંચી કરો. હાથને બાજુ પર જ રાખો અને કમર ઊંચી કરો, આખી મેક્સિમમ કમરને ઊંચી કરો. હાથથી એન્કલ પકડવા હોય તો પકડી શકો છો. વેરી ગુડ, સરસ થાય છે. લોઅર બેકના પેઇન માટે શ્રેષ્ઠ આસન છે. ધીરેથી નીચે આવો. ફરીથી એક વખત કરીશું. હા, ફરીથી ઉપર જાઓ. Slowly come down and relax in Shavasana. કિન્નર, બેટા આ પેલી જૂની લિંક જ ચાલે, 6 મિનિટ બાકી છે એવું છે એમાં. તો મને લાગે આ લિંક પૂરી થાય પછી ચાલુ. નોટિફાઈ નથી થયું. હા, નોટિફાઈ નથી થયું. મારામાં બતાવે છે તો પણ આપણી એક જ લિંક છે ને, એટલે કન્ટિન્યુ થશે, એવું થશે. થશે ને, બંધ પછી અટકશે નહીં ને? ના, અટકવી તો ના જોઈએ, કારણ કે નોટિફિકેશન આવ્યું નથી મને 10 મિનિટનું એમ. હા હા, ઓકે. ઓકે, નાઉ રેડી ફોર શવાસન. બંને પગ વચ્ચે થોડું અંતર રાખો. બંને હાથ શરીરથી થોડાક જ દૂર અને હથેળી આકાશ તરફ ખુલ્લી રાખો. શરીરને ઢીલું છોડી દો. शवासन के लिए तैयार. शवासन की ये स्थिति सिर्फ शरीर को नहीं, शरीर के अंदर जो आंतरिक अवयव है, अंतःस्रावी ग्रंथियां है, उसको भी बहुत लाभ करता है. श्वास लेने की प्रक्रिया, रुधिराभिसरण तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्ग तंत्र, अस्थि तंत्र और संवेदन तंत्र शांत है, शून्यवत है, ऋणवत है. ये शवासन की क्रिया तन और मन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. शवासन की ये स्थिति में आपके चौपास के वातावरण के साक्षी बनकर रहे. हो सकता है आपके आसपास सुंदर वृक्ष है, पक्षियां कलरव कर रहे हैं, प्रकृति का सुमधुर नाद आप सुन रहे हैं. अगर आप घर के अंदर हैं, फैन की आवाज भी आ रही होगी.
बाहर व्हीकल की आवाज भी आ रही होंगी। ये सभी आवाज में से आपका ध्यान आपकी अंदर की ओर खींचे और आपके हृदय की धड़कन सुनने की कोशिश करें। सभी आवाजों में से अपना ध्यान आप अपने अंदर खींचें और हृदय की धड़कन सुनने की कोशिश करें। जो श्वास आपके अंदर आ रही है, जो श्वास आपके बाहर जा रही है, नाभि में ध्यान को केंद्रित करते हुए आपके श्वास के आवागमन के साक्षी बनकर रहें। आप शांत है, नित्य है, सत्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, यही भावना मन में करें। शांतोयम आत्मा, आनंदोयम आत्मा। शवासन की पूर्व तैयारी के रूप में आपके पैर के अंगूठे और उंगलियों को नीचे की ओर दबाएं, रिलैक्स करें। आपके जो एंकल्स है उसको कड़क करें, रिलैक्स करें। काफ मसल्स है उसको कड़क करें, रिलैक्स करें। घुटनों को कड़क करें, रिलैक्स करें। थाइस को कड़क करें, ढीला छोड़ दें। नितंब के भाग को कड़क करें, हाथ की मुट्ठी बंद करें, ढीला छोड़ दें। आपके पेट को अंदर की ओर खींचें, ढीला छोड़ दें। फिर से अंदर की ओर खींचें, रिलैक्स करें। एक गहरी श्वास लें, आपकी छाती को ब्रॉड करें, खुली करें। आपके शोल्डर्स को ब्रॉड करें। आपकी आंखों को जोर से बंद कर दे, अंदर की ओर खींचें, होठ को दबाएं। रिलैक्स। फिर से एक गहरी श्वास लें, छाती को ब्रॉड करें, हाथ की मुट्ठी बंद करें, पैर को नीचे की ओर खींचें, फेस के मसल से उसको स्ट्रेच करें, खींचें। और पूरा शरीर ढीला छोड़ दे, रिलैक्स। पूरा शरीर
रिलैक्स कर दें। पूरा शरीर शांत है, शून्यवत है, शबवत है। जब हम शवासन करते हैं तब हमारी चेतना शरीर से पृथक होकर परम चेतना, वैश्विक चेतना के साथ एकाकार होती है। फिर भी शरीर का ध्यान तो रखना ही है। आपकी मन की आंखों से पैर के अंगूठे और उंगलियों की ओर आपका ध्यान ले जाइए। मन की आंखों से पैर के तलवे की ओर ध्यान ले जाइए। हिल्स को देखें। काफ मसल्स की ओर ध्यान ले जाइए। घुटनों को देखें। थाइस को देखें। नितंब की ओर ध्यान ले जाइए। नाभि से नीचे का पूरा शरीर शांत है, शून्यवत है, शबवत है, शिथिल है। अब मन की आंखों से अपने हाथ की उंगलियों को देखें। अंगूठा देखें। पाम्स को देखें। रिस्ट की ओर ध्यान ले जाइए। रिस्ट से ऊपर कोहनी तक का भाग देखें। दोनों कोहनियों को देखें, एल्बोस को। एल्बो से शोल्डर तक का हाथ देखें, आर्म्स। आपकी दोनों भुजाएं शांत है, शून्यवत है, शबवत है, शिथिल है। आप आपके मन की आंखों से पेट के अवयवों को देखें। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, राइट साइड पर लीवर, लेफ्ट साइड पर स्प्लीन, पेनक्रियास। सभी ऑर्गन्स सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में से स्राव नियमित और योग्य रूप से हो रहा है। पेनक्रियास सक्षम है। इंसुलिन बनने की प्रक्रिया नियमित रूप से हो रही है। मन की आंखों से अपने लंग्स को देखें। लंग्स संपूर्णतः स्वस्थ है। श्वास नली में से श्वास व्यवस्थित रूप से चल रहा है। सही मात्रा में प्राणवायु
ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और रक्त शुद्धि हो रही है। शिरा और धमनी में से रक्त संचार व्यवस्थित रूप से हो रहा है। हीमोग्लोबिन अच्छी मात्रा में है। बीपी तद्दन नॉर्मल है, हाई भी नहीं, लो भी नहीं, नॉर्मल। हृदय के पर्दे नियमित रूप से खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। हृदय और रुधिराभिसरण की क्रिया सुचारू रूप से हो रही है। मन की आंखों से अपना गला देखिए, दाढ़ी की ओर ध्यान ले जाइए, गाल की ओर ध्यान ले जाइए, होठ देखिए, नाक देखिए, दोनों कान की ओर ध्यान ले जाइए और मस्तिष्क की ओर ध्यान ले जाइए। पूरा फेस और मस्तिष्क शांत है, शून्यवत है, शबवत है, शिथिल है। आपकी चौपास की आवाज के साक्षी बनकर रहें। शवासन की अवस्था में शरीर से पृथक 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, पंच महाभूत के साथ आपकी चेतना एक रूप हो रही है। और ये पांचों तत्वों की शक्ति और क्षमता आपके अंदर प्रवेश करके एक नवीन चेतना, स्फूर्ति, अद्भुत कार्यक्षमता का निर्माण कर रही है। आपकी श्वास बहुत धीरे से चल रही है, इसके साक्षी बनो। जब आप श्वास अंदर ले रहे हैं, आप विश्व की सत्ता, सौंदर्य, ज्ञान, प्रकाश, आनंद, सब कुछ आप अंदर की ओर खींच रहे हैं, प्रवेश हो रहा है। जब आप श्वास बाहर निकाल रहे हैं, तब आपके निजी जीवन की खुशी, प्रेम,
आनंद, शांति आप विश्व की वेदी पर अर्पण कर रहे हैं। विश्व को आप आपका सब कुछ समर्पित कर रहे हैं। आपके अंदर एक नई चेतना का संचार हो रहा है। आपके हृदय के धड़कन को सुनने की कोशिश करें। हृदय गुहा में प्रवेश करें। आपके शांत स्वरूप का अनुभव करें। आपकी समग्र चेतना को हृदय गुहा में केंद्रित कर लें। अब धीरे धीरे आपके पैर के अंगूठे और उंगलियों को हिलाएं। ऐसा भी हो सकता है आप मुझे सुन रहे हैं, आप हिलाने की इच्छा भी कर रहे हैं, पर जैसे कि इस पर आपका नियंत्रण नहीं है, ऐसा आप फील कर रहे हैं। धीरे धीरे हाथ की उंगलियों को और अंगूठे को हिलाएं। बहुत धीरे से आपके पैर के अंगूठे, उंगलियां, हाथ के अंगूठे, उंगलियां को साथ में हिलाएं। आपके हृदय की धड़कन को सुने। आप नित्य हैं, सत्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, अजर अमर अविनाशी आत्मा है। यही आपका स्वरूप है, इसकी अनुभूति करें। और एक यही मात्र अनुभूति करने के लिए हम ये विश्व में आए हैं। और ये अनुभूति सिर्फ और सिर्फ मनुष्य देह में ही शक्य है और कोई देह में नहीं। अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग करें और अपने जीवन का जो उच्चतम लक्ष्य है उसको सिद्ध करें। ईश्वर कृपा आप पर है, गुरु कृपा आप पर है, बुजुर्गों की कृपा, माता पिता की कृपा आप पर है, शास्त्रों की कृपा आप पर है। अब आत्म कृपा करने की प्रार्थना है।
और ये कृपा आप पर शाश्वत बनी रहे, यही प्रार्थना के साथ धीरे से आपके शरीर को लेफ्ट साइड पर घुमाएं, नी को थोड़ा बेंड रखें, लेफ्ट हैंड सर के नीचे रखें, राइट हैंड सीधा रखें, पैर पर आंखें बंद रखें। थोड़ी क्षणों के लिए यही स्थिति में लेटे रहें। अब धीरे से अपना स्थान ग्रहण करें, सुखासन में बैठें, शांति, आनंद और स्वस्थता का अनुभव करें। गुरु कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, यही प्रार्थना के साथ यहाँ पर हम शवासन पूर्ण करते हैं। धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और पूरे विश्व को प्रेम से देखिए, आनंद से देखिए। जो देंगे वही पाएंगे। जय साईं शिवा।